Okay. Okay. So the derivative of x square upon 8, the derivative of x square is 2x upon 8, plus the derivative of x will be 1. Now we have to find the derivative of minus 1 over x. So the derivative of 1 over x, 1 over x will be equal to x raised to power minus 1. Therefore, its derivative is, therefore its derivative of 1 over x, or the derivative of x raised to power minus 1. तो x raised to power minus 1 का डेरिवेटिव हम कैसे देंगे? पावर नीचे आ जाएगी -1 and x raised to power -1 will be -2. -1 में से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा. So minus, it will become -1 into x raised to power -2, that is minus x raised to power minus x raised to power -2. ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, और माइनस अपनी जगह पर रहा. माइनस x raised to power -2, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 upon x square. So the derivative of 1 upon x is -1 upon x square. तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स इज -1 अपॉन, ये पॉजिटिव 1 अपॉन एक्सिस का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, माइनस अपनी जगह पर रहा, तो 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ ले रहे हैं, तो यह है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव ये है, और इसका डेरिवेटिव ये है. Now that will become 4 into x square upon 8 plus x -1 upon x raised to power 3 into ये 2 1 2, 2 4 8, x upon 4 plus 1 minus minus plus 1 upon x square. This is the answer. Now we have to arrange ascending order में. ये कम वाली पावर जो है, पावर 1, ये पहले लिख देंगे. सबसे पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद कम पावर वाला x upon 4 plus 1 upon x square. उसके बाद ये पावर 3 वाला लिख देंगे, x square upon 8 plus x minus 1 upon x raised to power. This is the final answer. This is dy upon dx. So 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 upon x स्क्वायर. मोहम्मद सलमान. अली मोहम्मद. जवेरिया मती. So that was question number 13. That was question number 13. Now
15, 16, 17, 18 are the trigonometrical functions. Now, when we'll do trigonometrical function, then we will solve this question. Now, question number 19 of the same exercise, exercise 3.5, question number 19. Question number 19. P is equal to under root 3 minus t. Now here, P is a function of t. P is a function of t. So we will find dP upon dt. So first under root will be removed and converted into index form 1 over 2. Under root will become power 1 over 2. So now P is equal to 3 minus t raised to power 1 over 2. Now we will find the derivative dP upon dt. P is a function of t. Therefore, we will find dP upon dt. That is equal to 1 over 2 into 3 minus t raised to power 1 over 2 minus 1. एक power कम कर देंगे n minus 1 into the derivative of 3 minus t. What is inside the bracket? इसका derivative से इसको multiply कर देंगे. This is a function of t. So derivative with respect to t लेंगे. It will become 1 over 2 into 3 minus t raised to power 1 over 2 minus 1 will be minus 1 over 2. 1 over 2 minus 1 will be minus 1 over 2 into the derivative of 3 will be 0 minus the derivative of t is 1. So 0 minus 1. So 0 minus 1 will be minus 1 और minus 1 जब 1 over 2 से multiply होगा तो minus 1 over 2 into 3 minus t raised to power minus 1 over 2. This is the answer. शहरियार फैसल. Samapra. Okay, so this is the answer. dy dp upon dt minus 1 over 2 into 3 minus t whole raised to power minus 1 over 2. इसको अगर चाहे तो अंडर रूट में भी लिख सकते हैं. माइनस पावर को पहले नीचे ले जाएंगे फिर अंडर रूट में लिखा जाता है. नेगेटिव पावर अंडर रूट में नहीं लिखी जा सकती. तो इसको माइनस 1 over 2 ये नीचे जाएगा तो 3 minus t raised to power 1 over 2 पॉजिटिव 1 over 2 हो गया. जब ये पावर पॉजिटिव 1 over 2 होगी तो हम इसको अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं. माइनस 1 over 2 अंडर रूट 3 minus t यूं भी लिख सकते हैं इसको. माइनस 1 over 2 अंडर रूट 3 minus t. सैयद मुजम्मिल वसीम.
ओके, आसान है। तो यूं भी इसको लिखा जा सकता है, 2/1/2 -1/2 √3 - 2. That was question number 19. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, अब्दुल्ला सल्तानिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, y is equal to 1/21 into 3x - 2 raised to power 7 plus 4 minus 1/2x square raised to power -1. दानियाल, क्या तुम्हें रिमूव कर दिया जाए? तुम गैर जरूरी मैसेज करते हो, आई एम बैक, आई एम कमिंग, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन? क्यों फालतू मैसेज कर रहे हो? क्या परेशानी है तुम्हें? पहले भी तुमने यही किया, पिछले सेशन में जब आए थे, अब भी इस सेशन में आए हो, लेट तो यार लेट रहे हो तुम, उसके बाद आने के बाद फालतू मैसेज। Why do you want to convert the attention of the students or the teacher? What is the problem? I think you do not belong to this class. क्या पढ़ने के लिए आए हो? बाकी इतने स्टूडेंट भी हैं, देयर आर 29 स्टूडेंट्स आर देयर। ये फालतू बातें नहीं कर रहे वो। या तुम्हें आदत है फालतू बातें करने की? कि पढ़ाई पर कम तवज्जो दो, फालतू बातों पर ज्यादा दो, दूसरों की अटेंशन भी डाइवर्ट करो। टीचर पढ़ाई रोक कर तुम्हारा मैसेज चेक करता है, जो गैर जरूरी है। पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो बेटा, नहीं तो रिमूव हो जाओ, चले जाओ खुद ही। मैं रिमूव करूंगा तो फिर तुम अंदर नहीं आ सकते।
ये फिर फालतू मैसेज मैं तुम्हें रिमूव भी कर देता हूँ बेटा, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें क्लास में रखा जाए। कर दूं रिमूव क्या? फिर फालतू मैसेज फालतू बातें मत किया करो, बस खामोशी के साथ पढ़ लो अपना। ओके, so we will find dy upon dx, that will be equal to 1 over 21 into, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, so 3x minus 2 raised to power 7 will become, इसका डेरिवेटिव हम ले लेंगे 7 into 3x minus 2 raised to power 7 minus 1 will be 6 into जो कुछ इनसाइड है इसका डेरिवेटिव, जो कुछ इनसाइड है उसका डेरिवेटिव। मुस्तफा, रजाउल मुस्तफा, तो इसका डेरिवेटिव हमने लिया, इस फर्स्ट टर्म का 1 over 21 कांस्टेंट है एज इट इज आया, इसका डेरिवेटिव लिया 3x minus 2 raised to power 7, ये क्या हो जाएगा 7 into 3x minus 2 raised to power 7 minus 1 into डेरिवेटिव ऑफ 3x minus 2, ये तो इस वाली टर्म्स का डेरिवेटिव हो गया। अब दूसरी वाली लेते हैं, अब्दुल्ला, अब दूसरे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस बीच में प्लस का साइन है, प्लस लिख दिया हमने, इनटू पावर ले लेंगे -1 नीचे आ जाएगी, इनटू 4 - 1 over 2x स्क्वायर रेज टू पावर -1, एक पावर इसमें से भी माइनस कर देंगे, इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 4 - 1 over 2x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव व्हाट इज इनसाइड द ब्रैकेट, उसका डेरिवेटिव यहाँ इस साइड, इसका डेरिवेटिव, so it will become 7 1s are 7, 7 3s are 21, तो 1 over 3 आ गया, into 3x minus 2 raised to power 6, ये हो। फिर इसका डेरिवेटिव 3x minus 2, 3x का डेरिवेटिव 3, 3x का डेरिवेटिव 3 और 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये इसका पूरा हो। उसके बाद प्लस इंटू -1 विल बी -1, माइनस आ गया, और यहाँ क्या हुआ 4 - 1 over 2x स्क्वायर रेज टू पावर -2 into the derivative of 4 - 1 over 2x स्क्वायर, 4 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 over 2x स्क्वायर, 1 over 2 कांस्टेंट है, 1 over 2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिख दिया, x को ऊपर ले जाएंगे x रेज टू पावर -2 हो जाएगा, तो ये 1 over 2, ये 1 over 2 एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, इसको यूं लिख सकते हैं 1 over 2 x रेज टू पावर -2, 1 over 2 माइनस अपनी जगह रहा, 1 over 2 एक्स स्क्वायर क्या हो लिख सकते हैं 1 over 2 into x रेज टू पावर -2। अब इसका हम डेरिवेटिव लेना चाहें तो डेरिवेटिव 1 x रेज टू पावर -2 का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सिर्फ 1 over 2 अपनी जगह पर रहा, इसका नहीं ले रहे हैं, ये चले ले लेते हैं, डेरिवेटिव पूरे का ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1 over 2, इस तरफ कर 1 over 2
एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 x², ये हो जाएगा 1/2 इंटू x⁻²। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं दोनों साइड पे, डेरिवेटिव ऑफ 1/2 x², ये एक्चुअल क्या हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, हमने डेरिवेटिव लेना होगा x⁻² का, x⁻² का। तो x⁻² x⁻² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 इंटू x⁻² -1, इट विल बिकम 1/2, अपनी जगह पर रहा, क्या इसको, ये से कैंसिल हो गया, -1 आ गया, x⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं -1/x⁻³। ये इसका डेरिवेटिव आ गया 1/2 x² का, 1/2 x² का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1/2 x⁻² का डेरिवेटिव। तो 1/2 कांस्टेंट है, x⁻² का डेरिवेटिव क्या होगा, -2 इंटू x⁻² -1, दैट इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 x⁻³ दैट इज इक्वल टू -1/3। तो ये 1/2 x² का डेरिवेटिव हमने लिख दिया, इसको बड़ी ब्रैकेट डाल देते हैं, -1/x³, 4 का डेरिवेटिव 0, -1/2 x² का डेरिवेटिव -1/x3। तो ये अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, 1/3, तो ये 3 - 0 विल बी 3, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंदर बचेगा 3x - 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 4 - 1/2 x² रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा, और 0 माइनस माइनस प्लस 1/x³ हो जाएगा। इसको पहले लिख लेंगे, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास 3x - 2 रेज़ टू पावर 6 माइनस 1/x³ into 4 - 1/2 x² raised to power -2. This is the answer. 3x - 2 whole raised to power 6 minus 1/x³ into 4 - 1/2 x² whole raised to power -2. This is the answer. Ustad Khan. Who said with Zafar? Who said with Zafar? Okay. So that was question number 27. तो क्वेश्चन नंबर 27 हमने इस तरह किया है, दो इसमें प्लस वाले हैं, दो टर्म्स हैं और दोनों होल पावर में है, वो अलग होल पावर में है, वो अलग होल पावर में, उसका डेरिवेटिव ये यहाँ तक आएगा, फिर प्लस जो भी प्लस है, ये माइनस है, वो साइन लिख देंगे, फिर उसका डेरिवेटिव इनटू, तो फिर इसका डेरिवेटिव, तो 7 3 से 21 से 1/3 3x - 2 होल रेज़ टू पावर 6 आ गया, और 3x - 2 का डेरिवेटिव 3x का 3 आ गया, और 2 का 0 आ गया, 3 माइनस। अब इसी तरह दूसरा है ये -1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, और 4 - 1/2 x² रेज़ टू पावर -1 - 2 हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव 4 - 1/2 x², 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया, और माइनस 1/2 x² का डेरिवेटिव -1/x³ आ गया, -1/x³ आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x³, तो ये आ गया 1/3, 7 से 21 कैंसिल हुआ तो 1/3 3x - 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 3 - 0, तो 3 आ गया, ये 3 से कैंसिल हुआ तो 3x - 2 रेज़ टू पावर 6 आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं, ये आ गया था
ये माइनस माइनस प्लस 1/x³ तो ये पहले लिख दिया 1/x³ into 4 minus 1/2x² raised to power -2. So this is the answer. That was question number 27. Now Sayyid Muhammad Basir, Sayyid Muzammil Basir. Okay. The next question. अब हम ये मल्टीप्लीकेशन का करते हैं 4x + 3 raised to power 4. Question number 29. Question number 29. Y is equal to 4x + 3 raised to power 4 into x + 1 raised to power -3. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx विल बी इक्वल टू u into v का फार्मूला लगेगा, हम इसको u ले लेते हैं और उसको v ले लेते हैं. पहले हम इसको लिख देते हैं. दिस इज u इज इक्वल टू 4x + 3 raised to power 4. u is equal to 4x + 3 raised to power 4. इसका डेरिवेटिव u डैश 4 की पावर नीचे आ जाएगी into 4x + 3 raised to power 3. एक पावर कम करके लिख देंगे, -1 कर देंगे, 4 - 1 will be 3. और इसका डेरिवेटिव 4x + 3 का इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 4 into 4x + 3 raised to power 4 - 1 कर देते हैं आगे, ये 3 आ जाएगा. और इसका डेरिवेटिव 4x + 3 का 4x का डेरिवेटिव 4 और 3 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 4 + 0 will be 4 और 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, u डैश विल बिकम, ये 4 + 0 will be 4, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 16 into 4x + 3 raised to power 3. This is the derivative of u, इस पूरे का डेरिवेटिव. नेक्स्ट v है, हमने नेक्स्ट को v लेना है. u into v का फार्मूला हम लगाएंगे, v is equal to
x plus 1 raised to power minus 3. So v dash will become minus 3 नीचे आ जाएगा और x plus 1 raised to power minus 3 minus 1 into the derivative of x plus 1. What is inside इसका derivative? It will become minus 3 x plus 1 raised to power minus 4 into derivative of x will be 1 and derivative of 1 will be 0. So derivative of x will be 1 and the derivative of 1 will be 0. 1 plus 0 will be 1. तो ये हमारे पास v dash का फाइनल आंसर आ गया. 1 plus 0 will be 1. 1 minus 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो minus 3 आ जाएगा into x plus 1 raised to power minus 4. Minus 3 into x plus 1 raised to power minus 4. This is the v dash का आंसर. अब हम dy upon dx फाइंड आउट करते हैं. Therefore, dy upon dx will be equal to u dash into v. क्या होगा? u dash into v. u dash ये है हमारे पास 16 into 4x plus 3 raised to power 3 into v. v हमारे पास ये है u dash into v. v ये है x plus 1 raised to power minus. फिर प्लस v dash into u. v dash ये है minus 3 तो minus 3 into x plus 1 raised to power minus 4. v dash into u 4x plus 3 raised to power 4. ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया. अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. डेरिवेटिव तो फाइंड आउट हो चुका. अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है. तो सिंप्लीफाई क्या होगा? इसमें से कॉमन ले लेंगे. पहले 4x plus 3 देखते हैं. 4x plus 3 raised to power 3 है. 4x plus 3 raised to power 4 है. तो ये दोनों कॉमन है. 4x plus 3 यहाँ भी है वहां भी है तो 4x plus 3 कॉमन आ जाएगा. पहले 16 और 3 में से कॉमन देखते हैं. 16 और 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 4x plus 3 रेज टू पावर 3 है. ये पावर 3 है, ये पावर 4 है तो कम पावर कॉमन ली जाती है. तो कम छोटी पावर ये 3 है, ये कॉमन ले लेंगे. और क्या होगा? x plus 1 को हम देखते हैं. x plus 1 रेज टू पावर minus 3 है और x plus 1 रेज टू पावर minus 4 है. तो -3 और -4 में से -4 कम पावर कहलाती है. तो x plus 1 रेज टू पावर -4 कॉमन ले लेते हैं. इन